السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله أما بعد فقد قال الله بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم اللهم عجل لوليك الفرج. السلام علیکم. جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام دنیا کا واحد پروگرام ہے اور واحد چینل ہے جو اردو زبان میں جاری و ساری ہے. یہ آپ کی دعائیں ہیں. اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ جادو ٹی وی، راکو ٹی وی، امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے ہمارا ہدف مقصد رضا اہل بیت علیہم السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے. اس وسیلے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی معرفت ہمارے لیے اہم المہمات ہے. اسی مہم موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان علماء موجود ہیں. آئیے ہم ان سے اظہار تشکر کرتے ہیں اور ان کی شمولیت کا شکریہ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ نے اپنے قیمتی ترین وقت میں سے وقت عنایت فرمایا. خداوند متعال آپ کا سایہ اس امت پر قائم و دائم فرمائے. شکریہ. سلامت رہیے. جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ کربلا ہے، شب جمعہ بھی آ گئی ہے اور زیارت کا موضوع ہے. ایک عجیب دل لبھانے والا ماحول ہے جو کہ نصیبوں سے میسر آتا ہے. شب جمعہ انسان اپنے وطن میں بھی کھڑا ہو کے آنکھوں میں آنسو لا کے کربلا کو یاد کرتا ہے. جو کہ کربلا میں پہنچ جائے اس کی کیفیت نہ جانے کیسی ہوتی ہے، یہ دیکھنے والے خود محسوس کر سکتے ہیں. اسی موضوع کے اوپر چاہوں گا کہ آج آپ کی لب کشائی ہو. اپنا تعارف بھی فرما دیجیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بربند حقیر سید سبط محمد رضوی ہوں اور سرزمین لکھنؤ سے کہ زمین ادب جسے جس نام سے یاد کیا جاتا ہے اسی گلستان کا بہرحال ایک ادنا سا پھول ہوں اور مشہد المقدس میں زیر تعلیم اس سرزمین پر کہ مولا نے قسمت کیا اپنی بارگاہ میں. آج شکر گزار ہوں اس حسین کا کہ جس کی دنیا عاشق ہے، جس کی نگاہیں دنیا کے رکی ہوئی ہیں. آج اس مولا نے کرم کیا اور احسان کیا کہ اس بارگاہ میں اور وہ بھی شب جمعہ
हुजूर का शरफ़ मिला है। बहरहाल अपनी बात को यहीं से ज़रा सा मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। आगाज़ ये करना चाहूँगा कि बहुत मशहूर और मारूफ़ एक हदीस भी है कि जो कामिल ज़ियारत के अंदर भी नक़ल की गई है, दीगर किताबों में भी उलमा ने नक़ल किया है हमारे और आपके छठे आका से मौला इमाम ज़फ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि मौला फरमाते हैं कि हक़्क़ु अलल गनी अन याति क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ी सनते मर्रतैन सुभान अल्लाह व हक़्क़ु अलल फ़ुक़राए अन याति फ़ी सनते मर्रतिन। सुभान बहुत प्यारी हदीस है कि मौला फरमाते हैं कि मेरा हक़ या मेरे जद का हक़ उन लोगों पर जो कि गनी हैं, सुभान अल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने दिया है, वाह जिनको मालो ज़र दिया गया है, माशाअल्लाह, कम से कम साल में 2 मरतबा आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बहरहाल ये तो उनके लिए हो गया कि जिनके पास है। माशाअल्लाह, अब बहुत से लोग हैं जो नादार हैं, जिनके पास नहीं, वो कहेंगे, शिकवा करेंगे मेरे पास तो नहीं है, जिनके पास है वो लोग तो जा सकते, लेकिन हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। तो उस वक्त हदीस आगे बढ़ी, मौलाना फरमाया कि वो शख्स कि जिसके पास नहीं है, सुभान अल्लाह, जो नादार हैं, कम से कम साल में 1 मरतबा जाएं। बहरहाल हुज्जत तमाम हो गई। अब यहाँ पर यह है कि ये कहना कि पैसा, बहरहाल पैसा इंसान को इस जगह नहीं लेकर आएगा, सुभान अल्लाह, पैसा यहाँ इंसान को खींच के नहीं लाता है। सुभान अल्लाह, बहुत दुनिया में एक से एक मालोज़र रखने वाले, एक से एक पैसे रखने वाले बैठे हैं, आए और चले गए, वाह, लेकिन वो इंसान की जिसके पास कुछ नहीं है, अल्लाह कुछ भी नहीं है, सुभान अल्लाह, उसे हुसैन तलब कर लेते हैं। यहाँ वाह, तलब चाहिए, वाह, इनकी तरफ से बुलावा चाहिए, सुभान ये अल्लाह, जिसको चाहे लें उसे बुला ले। बहरहाल शुक्र अदा करते हैं इस मासूम का, इस मौला का, सुभान अल्लाह, कि जिन्होंने कदमबोसी का ये शरफ़ दिया है कि ज़मीन करबला पर ये खाकसार के कदम पड़े, ज़मीन करबला पर सुभान कि जहाँ फरिश्तों का नज़ूल होता है, वाह, ज़मीन करबला सुभान अल्लाह, कि जिस जगह हम जैसे आसी अगर यहाँ आ जाएं तो सुभान शायद ये बाइसे शरफ़ होगा और मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन लहज़ात में से ये होगा कि ज़मीन करबला पे इस जैसा गुनहगार इंसान भी आ सकता है। बहरहाल इनका एहसानमंद हूँ, इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपनी बारगाह में हुजूर का शरफ़ दिया, और वो भी शब जुमा में, कि जब तमाम मासूमीन और तमाम आइम्मा इस जगह पर मौजूद रहते हैं। अब आप ही थोड़ा सा अपना अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहिए। आपने जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया, कायनात का कीमती तरीन वक्त है जो आप यहाँ पर सर्फ कर रहे हैं, और करबला में, और दूसरा मारिफ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में बसर हुआ वक्त इबादतों की का ताज है। अपना तारुफ ही कराइए, और इसी मौजू को जो सैयद साहब ने शुरू किया उससे आगे थोड़ा सा रब्त दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को हमारी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा हक़ीर मुख्तार हुसैन भोजानी बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ, और कुम में और मशहद में इल्म हासिल करने के बाद चंद साल मडागास्कर और फ्रांस में खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। सुभान अल्लाह, अभी बम्बई में मुक़ीम हूँ। सुभान अल्लाह, जैसे कि अभी आगा साहब ने बयान फरमाया सुभान अल्लाह, कि शब जुमा के सिलसिले में और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की ज़ियारत के सिलसिले में, माशाअल्लाह, इमाम हुसैन सल्लल्लाहु की ज़ियारत के सिलसिले में शब जुमा, जैसे कि जब भी हम लोग यहाँ पर आते कोशिश करता हूँ कि एक शब जुमा ज़रूर ब ज़रूर करबला में गुजारूँ, और क्योंकि रिवायत में जो वारिद हुआ है, क्योंकि शब जुमा में तमाम आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम, यहाँ तक कि तमाम अम्बिया सुभान अल्लाह, शब जुमा तमाम अपने सब अम्बिया और आइम्मे मासूमीन अलैहिस्सलाम ज़ियारत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के लिए आते हैं। अल्लाह, और जैसे कि वो जो मशहूर वाक़या अब्बास माज़ंदरानी का, कि अब्बास माज़ंदरानी जब अपने वतन से पैदल चल कर आए थे, और उन्होंने आकर यहाँ पर इमाम हुसैन सल्लल्लाहु के ज़री के सामने आकर शब जुमा में जनाब अली अकबर की मसाइब पढ़े, अल्लाह, तो उस वक्त इमाम हुसैन सल्लल्लाहु खुद उनके ख्वाब में आते हैं या खुद उनको मिलने जाते हैं और कहते हैं कि अय अब्बास माज़ंदरानी, जब भी शब जुमा अगर हमारी कब्र के पास आना नसीब हो तो कोशिश करना कि हज़रत जनाब अली अकबर के मसाइब न पढ़ो, क्योंकि शब जुमा खुद मेरी माँ फ़ातिमा ज़हरा खुद हमारी ज़ियारत के लिए आती है। अल्लाह, तो ये हमें एक शरफ़ और एक बेहतरीन मौका मिला। हम शुक्र अदा करते हैं इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने इस गुनहगार, इस हक़ीर नाचीज़ को उन्होंने ये मौका दिया कि हम शब जुमा को यहाँ पर करबला में गुजार सकें। अल्लाह अकबर। इसी मौजू को हम आगे बढ़ाते हैं।
काफ़ी सारी बातें जो कि हम अकीदे में हिस्स करते हैं और हमारी ज़ात के ऊपर असरअंदाज हैं, वो बातें कई लोग इश्काल करके उनको कम रंग करना चाहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो लोगों के दिल थोड़े से मुतज़लज़ल हो जाते हैं, वो रिक्कत कम हो जाती है, या वो फजीलत या अहले बैत अलैहिस्सलाम से अकीदत में कमी का सबब पड़ते हैं। तो ऐसे अल्फाज अदा करना किस माने में रखता है, ख्वाह वो तहकीकी ही क्यों ना हो, किस माने में रखता है? बहरहाल बहुत बेहतरीन चीज़ की तरफ आपने इशारा किया कि इस वक्त बहरहाल बहुत सी साजिशें भी चल रही इन सब चीज़ों पर जी जी कि आज़ादारी को कम रंग कर देना और अहले बैत के जो ज़िक्र हैं फ़ज़ाइल और मसाइब को भी कम कर देना। जी जी बहरहाल मुतअद्दिद किताबें, बेहपनाह किताबें और बेहपनाह हदीसें हम शिया हम सुन्नी दोनों से, हर किसी से, यानी क़िबला भी मौजूद हैं, तायद कर सकते हैं इस चीज़ की, या आप भी इसकी तायद करेंगे कि मुतअद्दिद हदीसें यहाँ पर मौजूद हैं सुभान अल्लाह। कि जो ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, मसाइब व फ़ज़ाइल के ज़िक्र के लिए, खुसूसन आका हुसैन के मसाइब के लिए, सुभान अल्लाह। कि छठे आका की भी हदीस है, दीगर मासूमीन के 8वें मौला की भी हदीस मौजूद है कि ये एक ऐसा ज़िक्र है कि जिसमें रिया जायज़ है। अल्लाह यानी खुदावंद आलम ने किसी ज़िक्र के लिए रिया नहीं कही है, हर ज़िक्र के लिए तबाका के माने से। जी, तबाका जो यहाँ पर लाया गया है, यानी कोई ऐसा ज़िक्र या कोई ऐसा फ़ियल नहीं मिलता कि जिसमें रिया की इजाज़त दी गई हो। लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि छठे इमाम की हदीस है कि तबाकी करना, सुभान अल्लाह। यानी रोना नहीं, अगर इंसान को रोना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रोना नहीं आ रहा, कम से कम रोने वाले की सूरत बनाना, रोने वाले का चेहरा बनाना, खुदावंद आलम उस पर भी अजर दे रहा है। सुभान अल्लाह। यानी वो चेहरा खाली रोने जैसा अगर बना ले तो परवरदिगार चिबरसा के इंसान के वो आश्क निकल आए, अल्लाह और वो आश्क निकाले, क्या उसका रुतबा होगा, क्या उसका मर्तबा होगा। बहरहाल ज़ियारतों पे और भी साजिशें इस साल भी बहरहाल आपकी निगाहों के सामने है कि कम रंग करने के लिए कि इधर लोग ना जाएं, ज़ियारतों पे ना जाएं, आका हुसैन के बारगाह में माशाल्लाह हर रोज़ दिन ब दिन उसी तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप जगह जगह पे बहरहाल सुन रहे हैं कि करबला के हालात ख़राब हैं, क्या ख़राब, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बैठे हैं, ज़ायरीन का हुजूम है, पैर रखने की जगह नहीं हरम के अंदर, कि अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है। देखा होगा आपने, हम लोग ने सुबह ज़ियारत के लिए गए थे बिल्कुल क़िबला, और उसके बाद अभी दोपहर में हम लोग ज़ियारत के लिए गए, देख कर आंखें खुल गई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं। कहते हैं अगर ज़ायर ना भी हो, अल्लाह फरिश्तों को आसमान से ज़मीन पर हुसैन का ज़ायर बनाकर भेज दिया करता है। शरफ़ है उसको जो इस बारगाह में आ जाए और इस्तकबार हुकूमतें जितना भी चाहें, रोकना चाहें या गलत अफवाहें उठाकर कि उस ज़मीन पर ना जाया जाए, कभी ना ये रुका है ना रुकने वाला है। बहरहाल वो दौर भी याद आता है कि जिस ज़माने में लोग ज़ियारतों को आया करते थे। आज तो माशाल्लाह बड़ा आराम, बड़ा अच्छा हो गया है, सब ज़ियारतों पे सब आ रहे हैं, तरह तरह की सहूलतें मौजूद हैं। वो ज़माना भी याद आता है कि जब लोग अपने हाथ, पैर, सर और गर्दन कटा के आया करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी शान और शौकत से लोग आते थे, ना कोई किसी डर ना किसी खौफ से। आज भी माशाल्लाह उसी तरीके से ज़ायरीन आ रहे हैं। ज़ायरीन से एक और इल्तिजा मेरी है, एक और इल्तिजा मेरी इस ज़मीन से। बहरहाल इस वक्त लोग ये लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग शाहिद हैं, अपनी निगाहों के खुद देख रहे हैं कि ज़ायरीन जो इस वक्त डरे हुए हैं कि मौला की ज़ियारत के लिए ना जाए जाए, हालात बहुत अच्छे हालात हैं माशाल्लाह, इससे और अच्छे क्या हालात होंगे कि एक बेहतरीन तरीके से ज़ियारतें हो रही हैं। हाँ, ये आजर छीनने की कोशिशें लोग ज़रूर कर रहे हैं कि उस तरफ तवज्जो ना दी जाए। कि एक हदीस बहरहाल यहाँ पे मैंने याददाश्त की थी कि क्या सवाब है इमाम हुसैन की ज़ियारत का, कि आका हुसैन की जो ज़ियारत के लिए आए जाए। चंद तरीके से लोग आते हैं, मसलन बहुत से लोग हैं कि पैदल चल के आते हैं, बहुत से लोग हैं कि जहाज़ से आते हैं, बहुत से लोग दूसरी सवारियों से आते हैं, हर किसी का एक अलग अलग आजर है। यहाँ पे एक हदीस है बहरहाल जो कामिल ज़ियारत के अंदर भी है और दीगर किताबों के अंदर भी इसको नकल किया गया है कि हदीस छठे आका से यहाँ पर है। मौला फरमाते हैं कि मन अता क़ब्र अल हुसैन अलैहिस्सलाम माशियन अल्लाहु अकबर कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि क़दमिन यरफ़अहा व यज़अहा इत्क़ रक़बतिन मिन नस्ल इस्माइल। बहुत प्यारी हदीस है कि जो शख्स भी आका हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, माशियन चल के, बहुत से लोग दूर से चल के आते हैं, मौलाना कहेंगे मौलाना हम तो नहीं चल के आ सकते, ज़रूरी नहीं कि आप किलोमीटरों के हिसाब से, चंद कदम ही सही। जो शख्स माशियन से मुराद यहाँ दोनों चीज़ें आ जाएंगी, हम पैदल चल के आना या चाहे जिस तरह सवारे पे आना। तो उस वक्त मौला फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए आए, मेरे जद की ज़ियारत के लिए आए, कतबल्लाहु लहू, खुदावंद आलम लिखता है उसके लिए हर कदम पर, हर कदम जो ज़मीन पर पड़ रहा है,
वो कदम जो ज़मीन से उठ रहा है, वो कदम जो ज़मीन पर गिर रहा है, सुभान हर कदम पर नस्ल इस्माइल से एक बंदे को आज़ाद करने का अल्लाह सवाब। कितना अजर है, कितना सवाब है। बहुत हदीसें हैं इस जगह के लिए। इस अजर को बहरहाल इसी अजर को आगे बढ़ाने के लिए हम शामिल करते हैं भाई को कि ये जो अजर इतने सारे बयान हुए, हमारे साथ काफ़ी मरतबा हदीसों में आया कि कहा गया कि वो जिस तरीके से एक हदीस जो उम्मुल मोमिनीन के साथ भी बयान की गई है कि 1 हज 2 हज 3 हज 10 हज 70 हज तक पहुँचे तो खामोशी का इजहार हुआ। उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार किया कि आखिर तक सवाल करती रहती, सवाब बढ़ता रहता। ये तज़ाद किस हिसाब से है? क्या ये बयान में तज़ाद है या फजीलतों के इजहार का तज़ाद है, या इसके अंदर ये बयान किया गया है कि जितना इखलास जितना गुड़ उतना मीठा? क्या हिसाब है, समझ नहीं आई। देखिए जितना आप दूध में शक्कर डालेंगे उतने ज़्यादा आपको मिठास मिलेगी, समझे। ठीक है। तो ये तादाद जो रसूल खुदा ने बयान फरमाया, समझे, कि उम्मुल मोमिनीन हदीस को बयान फरमाया कि ये हमारा नवासा जो इमाम हुसैन सलातो-व-सलाम है, अगर कोई इसकी ज़ियारत के लिए जाएगा, ठीक है, उसके कब्र की ज़ियारत अगर कोई करेगा तो उसको खुदावंद ताला में 1 हज 1 उम्रा और 1 शहीद का सवाब अता करेगा। तो उम्मुल मोमिनीन ने उस वक्त ताज्जुब से फरमाया कि या रसूल अल्लाह 1 हज 1 उम्रा 1 शहीद का सवाब। तो जितना ताज्जुब किया गया उतना उस पर रसूल खुदा और उन पर आगे बढ़ते गए। 1 की बजाय 2 कहा, 2 की बजाय 3 कहा, 3 के बजाय 4 कहा, यहाँ तक कि 70 जो हमें वफ़ात गिरान के अंदर ये रिवायत मिलती है, 70 हज तक, 70 उम्रा तक, 70 शहीदों तक पहुँचे, समझे। तो उस वक्त खामोश हो गए। रसूल खुदा ने बयान फरमाया कि अगर आप इससे भी अगर ज़्यादा ताज्जुब करते तो जब तक आप ताज्जुब करती जाती तब तक मैं इसके सवाब को, इसके अज्र को मैं बढ़ाता जाता, क्योंकि इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने वो कुर्बानी दी है जो आज तक किसी बशरियत में आज तक किसी कुर्बानी मिसाल नहीं मिलती, कि जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए और शरीयत मोहम्मदी को बचाने के लिए जो इमाम हुसैन सल्लल्लाहु ने कुर्बान दी है, आज तक किसी ने ऐसी कुर्बानी नहीं दी। और बेशक उनका सवाब भी जो इमाम हुसैन की ज़ात करेगा उसका सवाब अज्र अजीम। तो जो हम तक जो पहुँचा है वो तो बहुत मामूली पहुँचा है, लेकिन जो खुदावंद आलम के नज़दीक में है वो हम हिसाब भी नहीं कर सकते और अपने गुमान भी नहीं ला सकते कितना खुदावंद आलम ने उसका अजर सवाब रखा हुआ है। अल्लाहु अकबर। यानी जिस तरीके से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, ना उसकी मिसल है ना मसल है। मिसल हकीकत में होती है, मसल जो होती है सिफात में होती है। ना सिफात में ऐसी कोई आ सकी, कोई ना इमाम हुसैन जैसा हो सकता है, ना उनकी सिफात में ना उनकी ज़ात में कोई इन जैसा नहीं हो सकता। हाथ के 4 मासूमीन में भी हुसैन एक है। तो इसी मौजू के तहत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस शब जुम्मा यहाँ पे आने के बाद हमारे एहसासात क्या होने चाहिए करबला में आने के बाद? बहरहाल शब जुमा में इस ज़मीन पर पहुँचने के बाद जो इंसान को सबसे बड़ा एहसास ये होना चाहिए कि ज़माने के इमाम के साथ वो हाजिर हुआ है। अल्लाह अकबर। इससे बढ़कर उसकी ज़िंदगी का क्या शरफ़ होगा। कि जैसा कि बिरादर ने भी बताया कि शब जुमा बहरहाल यहाँ पर तमाम मासूमीन मौजूद होते हैं, सारे मासूमीन इस जगह पे आते हैं, शब जुमा मौजूद हैं। ख़ास तौर से शहज़ादी कौनैन के लिए है कि शहज़ादी कौनैन इस जगह पर मौजूद होती हैं। जब शहज़ादी मौजूद हैं, शहज़ादी के शहज़ादे इमाम महदी भी मौजूद हैं, यानी अपनी दादी के साथ अपने जद के पास इस जगह पर आकर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक तो ज़ियारत हुसैन फ़जीलत, दूसरे शब जुमा की ज़ियारतों में जो सबसे यानी हफ्तों में सबसे मखसूसी ज़ियारत अगर किसी मासूम की कही गई वो शब जुमा है, कि जिसका सवाब भी निहायत नकल किया गया है शब जुमा के लिए कि अगर चंद सातें अगर यहाँ पर बेदार रहे, अगर इस जगह पर इबादत करे या चंद सांसें ली जाए तो उसका क्या अजर है, असल फरिश्ते उसको लिख नहीं सकते। तो अल्लाह ने वो जो हमें शरफ़ दिया इस जगह पर पहुँचने का, इस शब जुमा में हमें और आपको सबको, इस वक्त नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं सब ये लोगों को जो शरफ़ दिया इस जगह पर कि हमारे साथ बैठे हैं शब जुमा में और ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, तो इनके साथ मौला हुसैन के बारगाह में चलते हैं, आका हुसैन के पास एक सवाल करते हैं। आका से 12 सवाल किया है, फिर सवाल करते हैं, मेरे मौला हुसैन आपने हमें बुलाया है, हम सब बैठे हुए इस वक्त, आप लोग भी बैठे हैं, सामने बारगाह मौला नज़र आ रही है, सब बैठे साथ में। आका से एक सवाल करते हैं, ए आका हुसैन आपने हम सब को अपने पास बुलाया है, क्यों बुलाया है? एक सवाल, हमें बुलाया है, क्यों बुलाया है? क्यों किसी और को आपने नहीं बुलाया? बहुत से लोग हैं घरों में टीवी खुले होंगे, लोग नहीं देख रहे होंगे। बहुत से लोग हैं कि बहरहाल आए हुए हैं लेकिन इस वक्त इस ज़मीन पर नहीं पहुँचे, शायद दीगर मासूमीन के पास पहुँचे। हम यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं?
मौला आपने हमको ही क्यों बुलाया है, सुभान क्या देख लिया हम में आपने, कौन सी ऐसी चीज़ है बगैर किसी तकल्लुफ़ व तारुफ के। मौला कोई ऐसी चीज़ हमारी नहीं है जो आपको पसंद आ जाए। वो क्या पसंद आ गया आपको कि जो आपने ऐसी शब में कि जहाँ फरिश्तों की लाइन लगी हुई है, अल्लाह अकबर, कि एक के बाद एक फरिश्ता आने के लिए उसको घंटों लगा जा रहा है इस जगह पहुँचने के लिए, सुभान अल्लाह, और हुसैन ने हमें ऐसे ही आसानी से आने दे दिया अपने हर में चले। शायद मौला कहेंगे कि तुम्हें बुलाया है, तुम लोगों को अपने पास इस वक्त जो हमने हाजिर किया है, तुमसे हमें कुछ लेना है, सुभान अल्लाह, किसी मकसद के तहत हमने तुमको यहाँ पर बुलाया है। शायद वो हदफ हुसैन यहाँ पर सामने आ रहा हो, मकसद हुसैन वो सामने आ रहा हो कि मौला जिस वक्त मदीने से निकले थे और वो हदफ लेके निकले थे, मकसद लेके कि तुम हमारे पास आए हो, हमारे मिशन को आगे लेकर बढ़ो। अल्लाह वो अम्र बिल मारूफ वो नहीं अज़ मुनकर, एक दूसरे की इस्लाह करना, पहले अपनी करना, सुभान अल्लाह। पहले अपनी करना। इस्लाह के अंदर हमें मासूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत में काफ़ी सारे पहलू मिलते हैं हमें। इन्हीं पहलुओं के अंदर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने भी काफ़ी सारे पहलू इख्तियार किए। शब जुमा की निस्बत से करबला में आने के बाद हमारे ऊपर जो कैफियत तारी होती है, सबसे पहले तो शहादत का जज्बा है, शौक़ मार्फत है, इसमें बुलाने के बाद मार्फत है, अकीदत है, उनके हक़ है हमारे ऊपर आने के बाद। यहाँ पे करबला के अंदर शब जुमा के अंदर आप क्या मांगना पसंद करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से? सबसे पहली चीज़ जो हम मांगेंगे इमाम के पास या खुदा के पास, सबसे पहले कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल का माहौल और आजकल जो दुनिया जो है ना बिल्कुल यानी जुल्म और जौर से भर चुकी है, और हम सबसे पहली चीज़ जो इमाम के पास मांगेंगे, इमाम के पास तलब करेंगे कि मेहदी आखिर ज़मान का ज़हूर हो जाए सबसे पहले, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके ज़हूर से ही तमाम की मुसीबतें दूर होगी। जब तक उनका ज़हूर नहीं हो रहा, ये दुनिया जुल्म और जौर से और ज़्यादा बढ़ती जा रही है इसमें, और जैसे उनका ज़हूर होगा तमाम मुसीबतें, तमाम इंसानियत पे जो है ना वो बिल्कुल यानी उन पे उनकी तमाम मुसीबतें, इमाम के सिर्फ एक ही चीज़ जो मांगनी है शब जुमा में, एक ही ख्वाहिश है कि खुदा जल्द से जल्द इमाम का ज़हूर फरमा दे, ताकि तमाम लोगों की, फ़कत मुसलमानों की नहीं बल्कि जो गैर मुस्लिम है उन सब की भी मुसीबत सिर्फ इमाम के आने से ही सबकी तमाम मुसीबतें दूर होगी इंशाअल्लाह। यानी शब जुमा की निस्बत से हमारी बात चल रही है, तो शब जुमा के अंदर चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम, अम्बिया, औसिया, औलिया, फरिश्तगान, यानी गरज ये कि बेनुक्ततिन वाहिदा एक बात कहें कि यानी इंसानों से ज़्यादा मुंतज़िर आसमान से लेके ज़मीन तक सफ़ दर सफ़ फरिश्ते खड़े हुए हैं। हमारी क्या औकात, क्या मकाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करम के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि वो जो हमें यहाँ पर लेकर आए। ना पैसा लेके आता है, ना माल, ना जान, ना सेहत। यहाँ पे देखिए गरीब ज़्यादा है अमीरों की निस्बत, फ़कीर ज़्यादा है मालदारों की निस्बत। यहाँ पे पैदल आने वाले, गाड़ियों पे आने वालों की निस्बत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो इस मोहब्बत, इश्क, मवद्दत के मैदान के अंदर यहाँ पे आप किसको याद करना चाहेंगे अगर आपको याद करने का मौका मिले? बहरहाल यहाँ पे सवाल बड़ा सख्त है, थोड़ा सा इसका जवाब देना कि इस जगह पर पहुँचने के बाद हम किसे याद करेंगे। एक किसी को याद कर ले कि सारी यादें उससे जुड़ जाएं। सुभान अल्लाह। एक ऐसी याद आ जाए कि जिसमें सारी यादें आ जाएं, एक ऐसे को ले आया जाए कि सारी मुश्किलात भी उसी से दूर हो जाए। तो इस जगह पहुँचने के बाद इस शब जुमा में अगर हम किसी याद करेंगे तो एक ही वो हस्ती हमें नज़र आती, पूरी दुनिया में अगर उंगली उठाएं तो वहाँ पे जाके रुक जाती है, फर्जंद ज़हरा है। सुभान अल्लाह। कि अगर अपने ज़माने के इमाम को अगर इस जगह पे हम याद कर लें, सारी यादें जिससे वाबस्ता हैं, सारे रास्ते जहाँ पे जाकर ख़त्म हो रहे हैं, सारी इंतहा की इब्तिदा उसी इमाम से हो रही है कि उस जगह अगर इस जगह पे अपने ज़माने के इमाम को याद करें। और यही मेरा दिल कहता है कि नहीं मालूम कि मौला किस जगह, किस गोशे में खड़े हुए और आका यहाँ पे गिरिया कर रहे हो, हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। आज इंसानियत पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है, जगह जगह पे फर्जंद ज़हरा गिरिया कर रहा है, लाशों के ढेर पर अश्क बहा रहा है ये ज़हरा का लाल। कल जुमे का दिन है कि कल का भी वो दिन है कि बहरहाल जो मौला से मंसूब, वैसे सारे दिन मेरे आका से मंसूब, लेकिन कल का एक ऐसा दिन है कि जब हमारे नाम आमाल हमारे आका की खिदमत में दिए जाते हैं, तो ऐसा अपना करेक्टर, अपना किरदार ऐसा हम बना लें कि ज़हरा के लाल के आँखों में हम आंसू ना लाएं,
کیونکہ یہ فرزند زہرا ایسے ہی ہمارے لاشوں کی ڈھیر پر جگہ جگہ مسلمانوں کے، شیعوں کے، انسانیت دوست کے لاشوں پر بیٹھ کر یہ گریہ کر رہا ہے۔ اپنے اعمال کو ہم ایسے بنا لیں، اپنے کردار کو ایسا بنا لیں، اپنی رفتار کو ایسا بنا لیں، اپنی گفتار کو ایسا بنا لیں کہ زہرا کے لال کی پسندیدہ ہو، کہ کل جب جس وقت ہمارا نامہ اعمال اس شہزادے کی خدمت میں جس وقت پیش کیا جائے تو ہمارا نامہ اعمال دیکھنے کے بعد اس زہرا کے لال کے چہرے پر تبسم آ جائے اور یہ کہے کہ واقعاً یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ایک جملہ اکثر میں کہا کرتا ہوں، اس کو پھر تکرار کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا، اگر ہم فرزند زہرا کے چہرے پر اگر ہم خوشی نہیں لا سکتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو لانے کا ہمیں حق نہیں بنتا ہے۔ بہرحال زمانہ بہت پرآشوب ہو چکا ہے، خاص طور سے اس مقام پہ، اس زمانے پہ، اس جگہ پر پہنچنے کے بعد میری گزارش ہر کسی سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نمازوں میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی فقد مات میتتن جاہلیہ، حدیث متواتر حدیثیں موجود ہیں، نہیں بھولنا چاہیے اپنے زمانے کے امام کو، نہیں بھولنا چاہیے۔ اور اس پرآشوب زمانے میں خاص طور سے ضرورت ہے آقا کے ظہور کے دعا کرنے کے لیے کہ میرا فرزند زہرا انشاءاللہ آئے، یہ میرا آقا آئے، اور آج جو دنیا میں یہ ظلم ہو رہا ہے، جور ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ سن رہے ہیں آپ، مجھے اس طرف نہیں جانا ہے، کہ یہ فرزند زہرا آئے اور آنے کے بعد امن و امان کے پرچم کو انشاءاللہ آ کر اس جگہ پہ جہاں پہ آقا کا ظہور ہونا ہے، پوری دنیا میں وہ پرچم امن انشاءاللہ آ کر یہ زہرا کا لال پھرا دے انشاءاللہ۔ بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر، جی تو چاہتا ہے یہ رات طویل ہوتی چلی جائے اور ہماری بات اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جاری و ساری رہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی سبب سے ایک افسوس سا بھی ہے کہ ہم زیادہ طولانی نہ رکھ سکے اس نشست کو۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بار بار کربلا آنے کی توفیق ہو، اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی دعا ہے کہ وہ آپ کے مرحومین جن کے لیے آپ چاہتے ہیں دعا کی جائے، ان کی بھی حاضری ہمارے دلوں میں یہاں پر موجود ہے، ان کے لیے دعا گو ہیں کہ انہیں بھی امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ بھی یہاں پر آئیں اور کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو ان کے شہیدوں کا پرسہ دے سکیں، آئیں یہاں پر آ کر آپ بھی امام حسین علیہ السلام کے حضور ان کی بہن کی بیریدائی کا پرسہ دے سکیں، آئیں آپ بھی یہاں پر آ کر حجت خدا کی قبہ امام حسین علیہ السلام تلے دعا مانگیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے زخموں کا درمان ہو سکے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی دعا یقیناً ہمارے لیے سبب نجات ہے، سبب قبولیت دعا ہے، اور ہماری سب دعاؤں کی انتہا، ہماری آخرت، ہمارا منتہا، ہمارا ملجا، ہمارا ماوا امام زمان علیہ السلام ہے، ان تک پہنچے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، کیونکہ ان کی معرفت ہماری زندگی کا ہدف ہے، اسلام کا مقصد ہے، اور انتظار کا یہی ایک سرچشمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں۔ غیبت خدا کے ظہور کے دعا کے ساتھ دعا کرتے ہیں، خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ دنیا باقی ہے جب تک حجت خدا باقی ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔